Today is Ekadasi. So we read from Prabhupada Pastimes. We have the book here by Tamal Krishna Goswami Maharaj. Servant of the Servant, page number 58. Receiving Brahminical initiation was not the final goal. However, there were duties to be carried out, rules and regulations to follow, not the least of which was the standing order to preach Krishna consciousness. Prabhupada was sacrificing the last remaining years of his life to offer Krishna to the people of the Western world, and he expected the same dedication from his disciples, especially those who were senior. The tendency to become lazy, to take it easy in spirituality was always there. But such an apathetic attitude would not help the conditioned souls suffering in the material world. So, what is said here, body always influences us. Body means dead. Body means dull. Body means animalistic. So if you remain on bodily platform, you will be attacked by 6 enemies of the mind: lust, anger, greed, envy, jealousy. Pride. So that is the measure, whether you are on bodily platform or whether you are on spiritual platform. That will be known whether you have transcendental qualities or material qualities. Material qualities: kama, krodha, lobha, mada, moha, illusion. Enviousness, illusion, greed, lust, anger, and pride. 6 enemies. So, you cannot live an ideal life and think that you are leading an ideal life. Is there any difference? Ideal life, ideal life, idea. So, this is also one of the qualities of a devotee. He is very active. A devotee, because soul is always active. Is that right? Always active. It is not possible for the soul to sleep. The soul doesn't need any sleep. Soul doesn't need any material food. Soul only needs Krishna. In Goloka, you will become hungry. If you go to Golok Vrindavan,
You will also, now it is 9 o'clock, where is my breakfast? बोलो वरिष्ठ भक्त, गोलक में आपको भूख बर्दाश्त करने पड़ेगा, भूख लगेगा, फिर भी खाते हैं, गोलक में खाते नहीं हैं। ऐसा है क्या है? भागवत में खाने का अभिनय जो भौम वृंदावन में सब लोग खा रहे थे, तो जब मैं पूछा गोलोक में भूख लगेगा क्या? नहीं। फिर लोग खाते नहीं खाते हैं कृष्ण की इच्छा के अनुसार। कृष्ण को जो प्रसन्नता देगी, जैसे भगवान कृष्ण यशोदा माता के पास जाकर मुझे भूख लगी, दूध पिलाओ, तो यशोदा को, माँ यशोदा को बहुत आनंद मिलेगा भगवान कृष्ण आके, जैसे भगवान प्रीति के पास आके मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ खिलाओ, कैसा लगेगा? भारी आनंद मिलेगा। हाँ, भगवान कृष्ण मुझे पकड़ के मांग रहा है। इसको प्रेम का आदान प्रदान बोलते हैं, भूख वाली बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी 9वें अध्याय के वो भगवान को खिलाने के श्लोक के संबंध में बोलते हैं, भक्ति है इसलिए भगवान खाएंगे, भगवान खाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रेम से बना रहे तो भगवान को भूख लगेगा। आपको प्रेम नहीं है, जितना मर्जी बनाओ, भगवान आएंगे नहीं। तो सब who is coordinating? Somewhere else they have taken permission, or who asked them that what is going on? They are going to go to dining hall or what? Or function hall, or whether they have permission? So in Golok, they have मध्याह्न भोजन लीला, गोवर्धन के परिसर में गोवर्धन के पेड़ों के नीचे भोजन लीला। भगवान रात को खाते हैं, सुबह खाते हैं, इसको लीला बोलते हैं। इसी प्रकार से गोलोक में प्रभुपाद लीला क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद ये सब करना जरूरत नहीं है, वो आनंद में कर रहे हैं तो लीला बोलते हैं। मजबूरी में करते हैं, ये तो बद्ध जीवन है। खाने के बिना नहीं रह सकोगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग गोपी लोग खाना वगैरह छोड़ दिया, कृष्ण के विरह में वो नदियाँ जैसा उनको आंसू बह रहे हैं। नदियाँ जैसा कोई आंसू बहता है क्या? इधर नहीं बहेगा। तो भगवान के धाम में जैसा क्या बोलते हैं,
आपका होली के समय लोग गुलाल खेलते हैं, नहीं? पिचकारी मारते हैं, नहीं? पिचकारी मारते हैं। तो ऐसा महाप्रभु के आंखों से प्रेम की जर्नी, नयन यमुना जरे अनिवार तुम्हारा विरह गिरिधारी। నయన యమునా నదిలో ఎన్ని నీళ్ళు ప్రవాహం చేస్తున్నాయో ఆ విధంగా यमुना में जितने धारा है पानी, नयन यमुना जरे अनिवार तुम्हारा विरह है गिरिधारी। इतना पानी है क्या आपके अंदर? भगवान के धाम में एवरीथिंग दिव्य है। दिव्य स्तर पर कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। देयर इज नो सीमा नहीं है। जैसे गोपी लोग खान पान छोड़ के रोते रही, तो दुनिया में ऐसा नहीं है। अब थोड़ा समय रहेंगे, खा पी के आके फिर बैठ के रोना पड़ेगा, यह संभव नहीं है। अब रोते रहे और इधर ऐसा रोने का इतना प्रेम तो किसी के साथ होता भी नहीं है दुनिया में। जितना प्रेम है उतना थोड़ा 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, उसके बाद हरे कृष्ण, नेक्स्ट हम चलेंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं है गोपी लोग राधा रानी कृष्ण के विरह में रोते रहे दिनों तक। हमको मालूम नहीं पड़ता है ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि इस दिमाग से समझने वाली चीज़ नहीं है। तो इधर हम जो पढ़ रहे हैं भगवान खाने के बारे में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयश्यते भक्ति उपावृतम अस्नामि। तो आपकी भक्ति की वजह से भगवान को भूख लगता है। भगवान खाने के बिना रह सकते हैं, आत्मा खाने के बिना रह सकती है। आत्मा के स्तर पर सिर्फ प्रेम होता है। अरे बोल, वो औरत कौन है पता है क्या? पता नहीं। మీరెవరో తెలియదంటుంది ఏంది? మీరెవరంటే తెలియదంటుంది ఏంది? దిస్ ఇస్ కేదారేశ్వరి, ग्रेट डिवोटी कमिंग फ्रॉम सो फार। कभी देखा नहीं? तुम्हें चश्मा बदल लो। हाँ क्या कर वाले ఇప్పుడు? अच्छा तो फोटो निकालो फिर। तुम कीर्तन भक्ति योग भी करा दो। मैं 9 बजे बंद कर दें। चक्रधर को अपमान मत करो, तो इसको बोलते हैं एजुकेट करो। टकराओ मत, इनकार मत करो। और थोड़ा నువ్వు చెప్పబెట్టకుండా ఎంతమందిని తీసుకొచ్చావంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వాడు కీర్తన కూడా చేయించు, మందిరంలో కీర్తన, అతను కిందకి పోయి యోగా। శృంగార దర్శనం అప్పుడు, శృంగార దర్శనం సమయం, శృంగార దర్శనం 9 గంటలకి అందరినీ మందిలో తీసుకోండి దర్శనం ఆర్తప్పుడు। ఆ తర్వాత తీసుకెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు వీళ్ళంతా? ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు?
మీరు మీ ఆధ్వర్యంలో సెమినార్ ఇక్కడనా? మరి మీరు ఫ్యాంప్లెట్లు ఏం చెప్పలేదు ఇనాగరేషన్ అట్లా మాట్లాడి వెళ్ళారు. అరే సో ఇక్కడ तो हम बता रहे थे जब तक हम इस शरीर में है हमको कोई चाबुक चलाने वाला चाहिएगा, नहीं तो आप ढीले पड़ जाएगा। है नहीं कोई पीछे पड़ के प्रताप रुद्र करो उठाओ, नहीं तो बस सोते रहेंगे खाते रहेंगे। इस हम लोग उसको एडवांस डिवोटी बोलते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। उनको भजन के बिना प्रचार के बिना नहीं रह सकता है, इसका मतलब आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गया। इसलिए वो सीनियर डिवोटीज वो अपने आप योजना बनाते रहते हैं, मैं भगवान को ये करना है वो करना है। उनकी उत्साह बढ़ने वाली उत्साह है। आप भक्ति में बड़े चढ़े हो तो आपका उत्साह है अपने आप अंदर से भगवान के लिए ये करो वो करो, नहीं तो आपको पकड़ के भगवान के लिए क्या करोगे बोलो ऐसा पूछना पड़ेगा। आपको कोटा देना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा धक्का देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सांत्वना देना पड़ेगा। ऐसा आप प्रचार में जा के कुछ भी किताब नहीं बिका है, 100 रुपये अभी भी इकट्ठा नहीं हुआ है तो आप हताश हो जाओगे, आप निराश हो जाओगे। लेकिन भक्त लोग जानते हैं फल भगवान के हाथ में है। हम मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बात है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है। और भगवान गीता में भगवान बोलते हैं तुम कुछ ना करने से कर्म करना, वो बोलते हैं बहुत प्रेम में कर्म करो या नहीं है तो कर्तव्य समझकर। कर्मयोग क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, आपके स्वभाव के अनुसार आपका कुछ कर्म निश्चित किया जाएगा आपका स्वभाव के अनुसार, तो वो करना पड़ेगा। शूद्र का कर्म, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य का कर्म आपको हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक मैनेजर का काम होता है, एक मैनेजर का काम होता है कौन आदमी किस काम में उत्साहित होता है। कुछ लोग पैसा इकट्ठा करने में, बुरा काम क्या है? पैसा इकट्ठा करने कोई बुरा काम क्या है? जैसे आप इस काम में आए हो, अब बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, ये तो कमर्शियल औरत है, ये तो पैसा नहीं। आप वो पैसा एक पैसा भी अपने पॉकेट में नहीं रखते हो, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा भगत है। इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके पकड़ के पैसा लाते हैं, लेकिन आपका जीवन देखते हैं अपने लिए एक गिलास जूस भी नहीं लेते बाहर से। इतना मेहनत करते, मंदिर आके पानी पीते हैं, मंदिर आके छाछ पीते हैं, लेकिन वो मैंने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, क्या जाएगा? मैं ఏమైంది మాతయ్య అది మీ గురించి అవుతుంది, వెనకాల నుంచి ఎవరు తోసేవాళ్ళు లేకపోతే తమో గుణంలో పడిపోతాం.
तो पैसा इकट्ठा करना, किताब बेचना, ये कोई घटिया काम नहीं है। कृष्ण भावनामृत में सब कर्मों को एक जैसा फल मिलता है कि नहीं? हाँ, मैं बैठ के अलग अलग ट्यून्स निकालते रहूँगा, लेकिन वो आपने दिखावा के लिए किया है, भगवान अस्वीकार कर देते हैं। आप भाव में गाते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार से देखो, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया, शारदा को हम ठीक करना पड़ा था। शारदा मेरा नाम पड़ा नहीं है, तो मैंने अपना नाम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे क्या? फिर मैं पैर जो होता है डबल बोई చేస్తున్నారా? మీకు భగవంతుడి ప్రేమ మీద భగవంతుడి ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తారు, ఇంతకుముందు గుర్తు చేసేది మహారాజ్ 600 రూపాయలు రాయలేదు అనేవాళ్ళు కదా, ఇప్పుడు అంటలా। तो हम कोई रिकग्निशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, प्रेम की वजह से काम करते हैं ना। इसलिए आपको डांटा जाता है, गाली देते हैं, तो आपको कोई बुरा नहीं लगता है। कहेंगे परीक्षा है, आपको डांटेगा, गाली देगा, हाँ बस किधर जा रहे? अब जा रहे, घर जा रहे। क्या हो गया? आपने मुझे ऐसा बुरा वाला डांट दिया। इसमें प्रेम नहीं है, फेल हो गया ना। प्रेम हो तो आप चैलेंज करेगा, हम इधर से क्यों जाए, वैसे क्यों जाए? घर बार छोड़ के अभी 10 साल के बाद घर थोड़ी जाऊंगा क्या मैं? अब तो भगवान काम करने के लिए आए। आप डांटो, आपको भाई टेस्ट के लिए लक्ष्मी को बोल देंगे, लक्ष्मी वी आर नॉट हैप्पी द वे यू आर डीलिंग विद अदर्स, गेट लॉस्ट, गो होम। ठीक है, चले जाएंगे। आप क्या बोले? वाई शुड आई गो, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू डू सर्विस। मैं क्यों जाऊँगा भगवान की सेवा छोड़ के? तैयार है क्या? बिस्तर बांधने के लिए तैयार है? कुछ भी हो जाए हम तो जगन्नाथ जी को छोड़ेंगे नहीं। बुलाओ, पुलिस को बुला लूँगा मैं, आप मुझे निकाले तो कैसे निकाल देखूँगा। पुलिस को बुलाऊँगा, पंचायती लगाऊँगा, मैं जीबीसी को लेटर निकालूँगा, निकालेगा हमको कैसे निकालेंगे देखेंगे, है ना। आपको प्रेम है तो आपके, इसलिए इस कान में कुछ भी होता रहेगा, हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इस कान में कभी खून कतला हो जाता है, इस कान में कोई बच्चों के साथ ये हो जाता है, चाइल्ड मॉलेस्टेशन हो जाता है। औरत के लेकर कोई भाग जाता है, आपको बुरा लगता है। मेरे लोग पूछेंगे क्या आपको, मैंने वो फलाना लड़का उस लड़की के साथ भागे, ये सब तो वो नॉनसेंस है। तो आप इस कान को अंगुली क्यों दिखा रहे हैं? नॉनसेंस। तुमने जो गलती दी थी, इस कान का क्या कसूर है? ठीक है ना, ऐसा डट के खड़े हो जाना है। क्योंकि प्रभुपाद जी के मिशन पर आप मक्खी को बैठने नहीं देंगे, ठीक है ना। मैं कुरुक्षेत्र में जब गया था, उस समय कुछ ईरान की भक्त लोग थे, ईरान की औरत लोग, वो सब कुछ कांड हो गया था। वो बोलता है शहर के लोग, हम घरों में भी नहीं करते ऐसा, शादी के बिना ये सब नहीं करते औरतों के साथ। या हम भक्त लोग, आप क्या कर दिया इधर? अखबारों में आ गया था। मैं बोलता वो एक आदमी नॉनसेंस किया तो प्रभुपाद जी ने ऐसा थोड़ी करने के लिए बोला कि इस कान का कोई पॉलिसी है क्या? इस कान की गतिविधियों में ये भी एक है क्या? नहीं। इसका आप जानते हैं एक भक्त का जीवन तो कोई भक्त के स्तर पर रह नहीं पाता है, गिर जाता है, वो उनका नॉनसेंस है। तो इस प्रकार से भक्त लोग किसी के साथ बात करने में, जवाब देने में वो कोई हिचकाते नहीं है, शर्माते नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत, तो प्रभुपाद जी बोल देता नॉनसेंस सब जगह चल रहा है, इस कान में एक बार, एक साल में एक बार हो तो इसमें क्या है?
दुनिया में डेली हो रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, नॉनसेंस। दुनिया में लोग हर दिन कर रहे हैं, हर आदमी कर रहे हैं। तो हमारे मंदिर में 2-3 साल में एक लड़का ने किया है, इसमें क्या है? व्हाट इज देयर? वो आदमी भी आपके बीच में से आया था मंदिर में, आपके बीच में से आया था मंदिर में, तो कर इसलिए भक्त लोग, क्योंकि वो बोलते ना आदमी कोई मंदिर छोड़ के चले जाता है, तो बहुत लोग तो मंदिर के बाहर तो रहते ही है। एक आदमी मंदिर में कुछ साल रह के चले गया, उसमें क्या है? इसमें शर्माने का क्या है? वो रह नहीं सका, दिव्य जीवन में रह नहीं सका, तो आप वालों के जीवन में वो फिर शामिल हो गया है। इसमें इस्कॉन को आप बदनाम करना क्या होता है? तो इस प्रकार से आप इस्कॉन का एक इसको क्या बोलते हैं, यू हैव टू बिकम एक पिलर बन के रह जाना है। जो भी साधना ठीक नहीं करेगा वो तो हो गए बता सकते हैं। कोई क्लास में नहीं आ रहा है, कोई बैठ के सबके सामने बैठ के जप नहीं कर रहा है, कोई मंदिर में होते हुए आरती में नहीं आ रहा है। मंदिर में रहेगा तो मंदिर में कितने आरती होते हैं? 6 आरती होते हैं। आप मंदिर में रहते हैं तो कितना काम भी हो, कितना आरती जरूरी है? 3 आरती जरूरी है, मंगल आरती, संध्या आरती और गुरु पूजा। गुरु पूजा, श्रृंगार आरती, साथ क्लास, ये तीन एक साथ होते, इसमें अटेंड करना। श्रृंगार आरती भी हो जाएगा, गुरु पूजा भी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा, बस आपको बहुत बड़ा बल मिलेगा। है? तो आप के अंदर मनोबल बहुत होता है, आपके विचारों में गिरावट नहीं आएगा, घटिया विचार नहीं आएगा। तो डोंट टेक इट इजी। तो डेली होता है कीर्तन, कभी देखते रहते हैं शारदा में, कभी तो डेली कीर्तन जरूर कुछ पिछकबुल फोड़े अनकाल कुछ అంటే మీరు తప్పులు చేయబోతున్నారు। सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है, बात करो, कोई बात नहीं है, प्रचार है, क्या है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको कीर्तन का महत्व का असर हमारे दिमाग पर अभी तक हुआ नहीं है। तब हम लोग यार डेली तो होता ही रहता है कीर्तन, पहले कबूल जो होता ना, कुछ नहीं वो चुप महाराज आ गया, नॉनसेंस है। तो आपको कोई डंडा लेकर हर समय देखना पड़ेगा क्या? कभी न कभी आदमी लीडर बनना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकम लीडर। कहना क्या है? whenever there is kirtan going on, very important activity, इससे भी इम्पोर्टेंट है बात करना है, जरूरी, तो ठीक है, प्रचार है या बहुत जरूरी है। जैसा कलेक्टर का मैसेज आएगा आपके पास, तो मुझे बोलना है, तो आप कीर्तन के बीच में, क्योंकि उनका आने का टाइम हो रहा है, बोलना है, इसका अर्जेंट ऐसा। तो कहने का यह है, जब तक इस शरीर में रहेंगे गिरने की संभावना है। कभी ये मत सोचो हम 40 साल से डिवोटी है, 50 साल से डिवोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं? तो गिरना निश्चित है। ये तो हर दिन वाली बात है। आप अच्छे भक्त को कैसे पहचानते हैं? वो बड़ा गजब का क्लास देगा, कमाल का कीर्तन करेगा, ऐसा पहचान देगा। अच्छा भक्त को कैसे पहचानेगा? वो सावधान है, वो अपने डेली के काम में सावधान है, उनको कोई गाने का टैलेंट नहीं हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है,
कोई बोलने का कोई इतना एक्सपर्ट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन आपके हाथ में है, समय पर आ जाओ, पूरा समय जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में रहो, सब पता लग जाता है कौन नॉनसेंस डिवोटी है। कोई बहाना मार के निकल जाओ, क्लास चल रहे हैं, बोला यह तो चलता ही रहता है क्लास, कमरे में बैठेंगे जाके, इसका मतलब आपका शुरू हो गया है, माया का वश में होना शुरू हो जाए, अभी तो मालूम नहीं पड़ रहा है। तो कभी भी क्लास का टाइम में आलतू फालतू बहाना मत दो। प्रभुपाद जी ने यह भी बोला था, भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद जी को एक बार क्या बोला था, तुमको सुनना जरूरत नहीं तो इधर बैठ के क्लास दो, तुमको कोई सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया, तुम दो क्लास। इतना पंडित बन गया था, चुप। इसलिए इस्कॉन में सीनियर जूनियर नहीं, भागवतम क्लास में सब बैठना है, सीनियर में बैठना जरूरत नहीं है, बैठना है। सीनियर है तो दिखाना है हम सीनियर है। प्रभुपाद जी ने भागवत पाठ करने के लिए बोला बैठो, नहीं तो तुम क्या सीनियर हो, क्या सीनियर हो। प्रभुपाद जी का आदेश को ठुकरा दो, हम जी बीसी, हम ये बीसी है, इससे क्या होगा? इधर राइट। इनमें भक्ति मीन्स सावधान, साधक, सावधान, साधक, प्रशासित। तो हर समय हम किसी के नीचे नम्र होकर रहना है। कभी इंडिपेंडेंट बन सकोगे क्या? अब हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे मेरे कोई सीनियर्स आएंगे तो मैं चुप होकर साथ रहूँगा नहीं, साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोगों को ठीक करना है। जब मेरे ऊपर लोग हैं मैं भी ठीक होना है, मैं भी ठीक होना है। तो इसमें नम्रता, विनयशीलता, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इज द हॉलमार्क, हॉलमार्क, हॉलमार्क मतलब नंबर 1 क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी में आप दूसरों की गलती निकालेंगे नहीं, ह्यूमिलिटी में आप दादागिरी करेगा नहीं, नम्रता से प्रस्तुत कर, फिर ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ह्यूमिलिटी, तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना मानेना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। हर समय जैसा जैसा सिंक होता जाएगा, जैसा नया मिट्टी भर दिया है मकान बनने के लिए, हाइट उठाने के लिए मिट्टी भर देते हैं, तो उसको सिंचाई करते हैं, इसको क्यूरिंग करते हैं, जिसके द्वारा वो मजबूत हो जाए, कोई ढीलापन है वो सब बैठ के मजबूत हो जाए ना। इसी प्रकार से हम कभी ऐसा समय नहीं होगा मंगल आरती में जाना नहीं है, जरूरत नहीं है, डेली का एक नवसिखिया जैसा, डेली का नया भक्त जैसा चलते रहे, चलो चलो मंगल आरती चलेंगे, चलो गुरु पूजा में चलेंगे। तो प्रभुपाद जी ने एक बात, जो एडवांस डिवोटी है वो छोड़ नहीं पाता है, जो एडवांस नहीं है वो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एडवांस नहीं है, छोड़ देगा तो माया में गिर जाएंगे। जो एडवांस है वो छोड़ नहीं सकेगा, जो एडवांस नहीं है वो छोड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब एडवांस है नहीं, एडवांस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगे रहो, राइट, लगे रहो, क्योंकि आपको आनंद मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। और काम क्या है, माँ बाप की सेवा छोड़ दिया, माँ बाप की सेवा छोड़ दिया, अपने हाथ से पैसा कमा के खाना छोड़ दिया, दूसरों के पैसे से खा रहे हैं, शर्म की बात है, दूसरों के पैसे से हम खा रहे हैं, इससे 10 गुना अधिक सेवा हम करेंगे,
हमने खाया था 5 रुपये 6 रुपये का माल खाया, हम काम करेंगे 500 रुपये काम करेंगे, तो आप लोगों को घाटा में डाल दिया। आप ऐश आराम से टाट बाट से खा लिया लेकिन काम नहीं किया, इसका मतलब आप कर्जदार बन गए लोगों को। जब भी आप रहते संसार, जब तक आप अपने हाथ से ना कमाए हुआ खाना खाते हो, आप देखना है मैं कर्जदार नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोगों को सेवा के रूप में मैं वापस करना चाहता हूँ। मैं घूम घूम के प्रचार करूँगा। ऐसा तो अच्छा लगता है, प्रचार करने में भक्तों को अच्छा लगता है। ये नहीं बार बार यही बात सुना रहे, तुम मांसाहार खाते हो क्या, तुम भोर में उठते हो क्या। वो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आपने सोचा बार बार यही क्यों बोला जाता है, बार बार हरे कृष्ण बोल रहे हैं, नया ताजा कुछ चाहिए क्या। नया इसको मतलब आपको भगवान के नाम क्या होते हैं मालूम नहीं पड़ा है। भगवान के नाम अपने आप में नया ताजा है, ये कोई ट्यून वाली बात नहीं है, ये नया भजन वाली बात नहीं है। थकते नहीं। महाप्रभु ने 48 साल नया नया भजन भी नहीं गया। हम लोग कभी गाते रहते हैं, क्या है, तुम्हारा भूलिया संसार हसिया पाए नाना यथा, या नहीं है तो पढ़े ना। अभी जो भजन भक्तिविनोद ठाकुर के पीछे क्या गा रहे थे, पढ़ाई के बारे में पढ़े, परम साहस है, विद्यारा विलास है, काटैनु काला, परम साहस है। तो ये तो अच्छा है क्योंकि बहुत भाव भरी अर्धयुक्त भजन है, कोई सेंटिमेंटल भजन नहीं है उसमें। इसलिए इधर आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो केवल हम जनेऊ डाल के हम लोग ब्राह्मण दीक्षा लेकर हम ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है तो अब बोलना जरूरत नहीं है, लोग खुद बोलेगा ये तो बड़ा होशियार आदमी है, ये बड़ा सावधानी आदमी है। इनके अंदर हम कमी गलती निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा रहता है। उनकी बोली में, उनकी करनी में, उनके विचार सुनने में, ये हर समय अच्छा काम कैसा करे और बढ़िया काम कैसा करे। ऑलवेज डिवोटीज आर ऑलवेज। और कोई बढ़िया तरीका है क्या ने काम करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, द टेंडेंसी टू बिकम लेजी, टू टेक इट इजी in spiritual life was always there until you get taste. आपको सेवा में प्रभु के नाम में रुचि बनने तक, ऐसा रसोई के काम में आपको रुचि है तो आप मौका मिलेगा मैं बढ़िया बड़ा स्वादिष्ट। तो भगवान तो बोलेंगे नहीं, भक्त लोग बोलेंगे मिर्ची ज़्यादा डाल दिया, तेल ज़्यादा डाल दिया। भक्त लोग बोलेंगे, भगवान माफ़ करेगा, भक्त लोग ठीक करेगा, या भगवान भक्तों के माध्यम से ठीक करेगा, है कि नहीं। भगवान माफ़ करके अनदेखा करेगा तुम्हारा गलती है,
लेकिन भक्त वो लांछन लगाएगा। कभी कोई भक्त लांछन लगाएगा, आप उनको अपना दुश्मन मत समझो। ये मेरा सच्चे हितैषी है। जो आपको चाटुकारी करेगा वो तो आपका शत्रु है, क्योंकि आपका फ़ायदा उठाना चाहते। मैं क्रिटिसाइज करूँगा तो वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। Such an apathetic attitude would not help the conditioned soul suffering in the material world. If the new Brahmins did not take trouble to offer their association to others, then they were Brahmanas in name only. A Brahmana is an enthusiastic person. A Brahmana is a pure person. A Brahmana is a compassionate person. कंपैशन तो बात करेगा, प्योरिटी है तो आप हिम्मत रखेगा, क्योंकि आप झूठे आदमी नहीं है तो बोलेगा हम कर रहे हैं आप भी करो। प्योरिटी, कंपैशन और आपका नेचुरल क्वालिटी है। एक ब्राह्मण आलसी नहीं होता है। प्रभुपाद रेफर्ड to such unqualified Brahmins, 2 पैसा ब्राह्मण। 2 पैसा ब्राह्मण क्या होता है? उन दिनों में जनेऊ 2 पैसा, जनेऊ डाल के मैं ब्राह्मण 2 पैसा का ब्राह्मण है, क्योंकि योग्यता तो है नहीं, केवल ये दिखा के देखो हम ब्राह्मण है। 2 पैसा ब्राह्मण ఇది చూపించిన బ్రాహ్మణ్ అని చెప్పుకుంటే ఇది ఆ రోజుల్లో 2 పైసలు ఉండేది, ఇప్పుడు 2 రూపాయలు ఉంటుంది। 2 రూపాయలు బ్రాహ్మణ్ అంటే నిజంగా బ్రాహ్మణ్ కాదు, చీప్ బ్రాహ్మణ్। ఇది చూపించుకొని చెప్పుకోవాలి జనాలకి నేను బ్రాహ్మణ్ అని। మీరుంటారు, మిమ్మల్ని మేము రెడ్డమ్మ అంటామా బ్రాహ్మణి అంటామా? కోమటి కోమటి అంటామా బ్రాహ్మణ్ అంటామా? బ్రాహ్మణి। पैदाइशी तो रेड्डी है, पैदाइशी तो कोमटी बनिया है, लेकिन मंदिर में जैसा ये लोग तपस्या करते हैं तो बोलना पड़ेगा ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण है, ठीक है ना। इट्स 9 o'clock। तो प्रभुपाद जी की हर बात बहुत वजनदार है। प्रभुपाद जी की हर बात बहुत शिक्षाप्रद है, वजनदार है। इसलिए हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते, प्रभुपाद जी क्यों कहा, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी की बात बिल्कुल शास्त्रों से एकदम मिलता है। शास्त्र को कोट नहीं कर रहे, लेकिन उसका भाव को बता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो you will have some devotional yoga engagement also for them, ठीक है ना।